let's read the given question. The question says, consider a thin metallic sheet perpendicular to the plane of the paper moving with speed v in a uniform magnetic field B going into the plane of the paper. We can see the figure. If charge density is sigma 1 and sigma 2 are induced on the left and right surfaces respectively of the sheet, then ignore fringe effects. Option 1 given है, sigma 1 equals to minus epsilon naught VB by 2, sigma 2 given है epsilon naught VB by 2. Option 2 given है sigma 1 as epsilon naught VB, sigma 2 given है minus epsilon naught VB. Option 3 sigma 1 equals to epsilon naught VB by 2, sigma 2 is minus epsilon naught VB by 2. Option 4 given as sigma 1 is equals to sigma 2 equals to epsilon naught VB. So to understand the given question, this is the case, we need to understand about the key concept of motional EMF. So motional EMF की जब हम बात करते हैं, so let's consider a case जहाँ पे we have a uniform magnetic field which is directed inward, और इस magnetic field के अंदर if we keep a rod, that is a conductor we can say, which is moving with some velocity v, ठीक है ना, कुछ v velocity से वो इस magnetic field के अंदर चल रहा है. So in that situation we can see कि इसके अंदर जो rod के अंदर जो free electrons होंगे, they will experience some force, क्योंकि हमें पता है कि जो free electrons होते हैं these are charge particle, and charge particle हमें electron को यहाँ शो कर रहे हैं. फिलहाल एक electron के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि whenever charge particle moves in a magnetic field it experience a force. That force is given by QVB sin theta, right? अब यहाँ पे sin theta is the angle between velocity and magnetic field. So यहाँ पे velocity magnetic field perpendicular है. So in that case we will say force will be QVB. और ये force लगेगा कहाँ? So by right hand palm rule we can say this force will be acting according to right hand palm rule. We can say कि finger should point in the direction of magnetic field, thumb in the direction of velocity. So right hand palm face will give the direction of force that will be acting on the charge particle, right? So, or to be precise, we have to keep the thumb in the direction of velocity of positive charge, ठीक है? So thumb जो है जो right hand का palm face है, that will give the direction of force. So in that situation we can say सारे positive charge के ऊपर force ऊपर लगेगा, और electron पे we can say force will be in the downward direction. So नीचे का जो terminal है वो negative हो जाएगा, और ऊपर का जो terminal है वो positive हो जाएगा, या फिर ऊपर का end positive नीचे का end negative हो जाएगा. So in that situation we can say electron के ऊपर इस case में force लग रही थी QVB नीचे की तरफ. And also we can see कि अब क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो के ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगी. सो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगी. सो इलेक्ट्रॉन पे वी नो के जब भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगेगी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी QE. सो अंडर इक्विलिब्रियम वी कैन से QE विल बी इक्वल्स टू QVB, राइट? जो नेट फोर्स होगी इसके ऊपर वी कैन से दैट हैज टू बी QE equals to QVB under equilibrium situation we are talking. So in that scenario we can say from the condition, यही condition we will use to analyze the given situation. अब यहाँ पे हमें जो magnetic field given है, that is again inward कुछ इस तरीके से magnetic field given है, और इसमें एक अब हमें given है कि एक thin sheet है, thin sheet is moving, right? So एक sheet हम यहाँ पे बना लेते हैं. अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, बस वेलोसिटी अब इस बार ऊपर दी गई है. सो अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये शीट हमें गिवन थी. अब यहाँ पे हम देखें अगर ध्यान से, सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है. सो यहाँ पे हम देखेंगे फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इन द अपर डायरेक्शन. सो सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जमा हो जाएंगे, यानी कि जहाँ सिग्मा 1 हमें गिवन है तो सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ जमा हो जाएंगे. तो इस सिग्मा 2 पे सारे नेगेटिव चार्ज आएंगे, यानी सिग्मा 2 हमें नेगेटिव मिलने वाला है. दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ से ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें वापस से इसके अंदर के जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो राइट वर्ड जमा हो गए, और पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंगली लेफ्ट वर्ड जमा हो चुके हैं. अब वी कैन से अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन उनके ऊपर जो जो फोर्स लग रही होगी दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर. सो वी कैन से अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन राइट, ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम force due to electric field will be equals to force due to magnetic field.
अब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड तो क्यू वी भी है, जैसे हमने डिस्कस किया. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू इंटू ई, राइट. दोनों इक्वल एंड अपोजिट है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो हमें वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, राइट. सो सिग्मा बेसिकली क्या होता है? सिग्मा इज नथिंग बट इट इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, राइट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिन शीट, वी नीड टू बी केयरफुल. जो इलेक्ट्रिक फील्ड थिन शीट की वजह से डेवलप होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय सिग्मा बाय जस्ट एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ पे विल पुट एप्सिलॉन नॉट. 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज ड्यू टू infinite charge carrying sheet only, but that is of for one side. यहाँ पे charge दोनों तरफ distributed है, so we have to take for both side it is sigma by epsilon naught, and it is in the nearby region. और we can clearly see कि electric field is independent of the distance, so ये basically same ही होते हैं हर जगह. So in that situation we can say q v b. अब यहाँ से q q cancel हो जाएगा, so sigma की value हमें क्या मिलेगी? It is epsilon naught v b, right. So अब ये sigma की value मिल रही है, so यही sigma दोनों तरफ distributed है as sigma 1 and sigma 2, right. Therefore we can say sigma 1 will be equals to plus epsilon naught vb and sigma 2 is minus of epsilon naught vb. I hope ये चीज़ समझ में आई होगी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे आया बाय राइट हैंड पाम रूल से. लेफ्ट साइड हमें पॉजिटिव मिला है, राइट साइड हमें नेगेटिव मिला है. सो अकॉर्डिंगली वी कैन से ऑप्शन जो 2 होगा हमारा इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.